عید کے رنگ کے سنگ، عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ، رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بقرہ عید کے رنگ۔ بقرہ عید کے رنگ پروگرام کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم آپ کو بڑے ہی خوبصورت جانور دکھانے والے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے مفتیان اکرام بھی ہوتے ہیں، مفتی شفیق صاحب اور مفتی کفیل صاحب۔ آئیے چلتے ہیں مفتی شفیق صاحب اور مفتی کفیل صاحب کی طرف۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پیارے مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر۔ آئیے آپ کو ایک یونیک جانور دکھاتا ہوں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ ادھر ورک کر رہے تھے، ہم ادھر کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچھا، ادھر آپ نے تلاش کر لی ہے یونیک؟ جی چلیں جی، پہلے مفتی صاحب کے تلاش کی ہوئی جانور کے پاس چلتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ ہے بھی ایسا بیل ہے کہ آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ اچھا، یہ دیکھیں، 3 سینگ ہیں۔ 3 سینگ ہیں اس کے؟ 3 سینگ ہیں، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ 3 سینگ ہیں، میرا خیال ویسے ہی کاٹے ہوئے ہیں اوپر سے نا۔ یا غصبہ بھائی، ہم سینگ کاٹنے کے لیے نہیں آئے آپ کے۔ ہو جائے گی، اس میں کوئی کسی طرح کی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تو ایکسٹرا اس کا سینگ آ گیا مصعب۔ ایکسٹرا ہے کیا اس میں حرج ہے؟ اچھا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض کا کان کے ساتھ ایک اور کان بھی نکلا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے بھی یہاں کچھ نکلا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا اس کے بھی کچھ نکلا ہوا ہے۔ جی جی جی، چھوٹا یہ دیکھیں اس کا ذرا بھی بھائی نکلا ہوا ہے، قریب سے۔ تو اس میں حرج نہیں۔ یہ دیکھیں، اب اس کے کان ہے، اس کے کان کے اوپر ہی چھوٹا سا ایک اور نکلا ہوا کان، کوئی حرج نہیں اس طرح کی چیزوں میں۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے، قربانی جائز ہے، گرچہ کہ اس کے کان ایکسٹرا نکلے ہوئے ہیں، سینگ ایکسٹرا نکلا ہوا ہے۔ یہ صوبان بھائی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس کے 3 سینگ میں سے ایک سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے؟ اگر اس کے 3 سینگ ہیں اور ان میں سے ایک سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا اب اس کی قربانی جائز رہے گی؟ دیکھیں، اگر سینگ اوپر سے جو ہے وہ ٹوٹتا ہے تو قربانی جائز ہوتی ہے، اگرچہ 2 سینگ میں سے بھی دونوں سینگ بھی ٹوٹ گئے، اوپر سے کٹے ہوئے۔ اور اگر جڑ جو ہوتی ہے سینگ کی، وہ دماغ کے ساتھ جو ہے وہ اندر ہوتی ہے، دماغ تک ہوتی ہے، جو اندر تک ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ویسے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے، اندر سے نکل جائیں گے، بالکل تو جڑ سے نکل گیا اگر۔ جڑ سے نکل گیا تو پھر اگرچہ یہ تیسرا والا بھی جو ہے وہ نکل گیا تو بھی قربانی جائز۔ اچھا، 2 سلامت ہیں اور ایک ایکسٹرا والا جو اگر جڑ سے نکل گیا تو بھی قربانی جائز نہیں ہوگی؟ زخم ہے نا، وہ زخم جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ بڑا عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے قربانی جانور کی نہیں ہو سکے گی۔ صحیح جناب۔ اسی طریقے سے مفتی صاحب، یہ جو کان ہے اور کان اس کے ایکسٹرا ہیں، اگر یہ بھی کٹ جاتے ہیں تو قربانی جائز رہے گی یا نہیں؟ تو قربانی ہو جائے گی، اس میں حرج نہیں ہے کہ جو اصل جو کان ہے وہ اپنی جگہ پر، اور یہ کان ویسے بھی بہت ہی چھوٹا سا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ صحیح، اس کو پراپر ہم کان کہہ بھی نہیں سکتے، اس کو کان کہہ بھی نہیں سکتے، اور اگر ہم اس کو پورے کان کی اگر ہم جو ہے وہ 1/3 کے اعتبار سے کاؤنٹ کریں تو یہ اس سے بھی چھوٹا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا بہرحال وہ اگر چھوٹا سا کان کوئی کٹ گیا تو اس کی وجہ سے قربانی میں حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بالخصوص اس جانور کے حوالے سے یہ جو شرعی مسئلہ بیان کیا ہے وہ اسپیشلی طور پر اس جانور کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ چلیں حذیفہ بھائی بھی سوال کریں گے۔ میرا سوال یہ کہ بعض بچے یعنی بیل یا بکرا ذبح ہو رہا ہوتے تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں روتے ہیں اور کیا وجہ ہے اس کی؟ جی مفتی صاحب، بچے اپنے جانور کے ساتھ ایک انسیت ہو جاتی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اتنے دن ان کو کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی، اب جب اس کی ذبح کا وقت آیا، اس کی قربانی کا وقت آیا تو اب بچے جو ہے وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے، محبت کی علامت ہے یہ، اور جانوروں کے ساتھ ایک طرح کا جو ان کا لگاؤ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور یہی چیز بچوں میں اگر رہی تو ان کے دلوں میں قربانی کا یہ جذبہ رہے گا، اور مزید جانوروں سے اس طرح کا جو ہے وہ، کیونکہ ہر جانور سے تو کوئی ایسا لگاؤ نہیں ہے، یہ وہ جانور ہیں کہ جو بالخصوص اللہ کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہری زندگی میں جانور 8-10 دن کے لیے آتے ہیں، 15 دن کے لیے شارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے بچوں کو خاص تفریح بھی مل رہی ہوتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں اور خوب روشنی کی جا رہی ہے، جیسا کہ اس وقت آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ اپنی فیملیز کو یہاں پر لے کر آنا اور اس طریقے سے اس کھلے انوائرمنٹ میں لے کر نکلنا، کیا جانور لینے کے لیے اس کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ اب ایک رواج بن گیا ہے، کپڑے خریدنے، جوتے خریدنے یا کچھ اور لینا ہے تو ظاہر ہے گھر والوں کو پسند کرانے کا ایک بنتا جا رہا ہے، لیکن یہاں چونکہ منڈی میں رش ہوتے ہیں، منڈی میں یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ یہاں
हमारी बेटियां बहनें आएँ। तो देखिए पर्दे की रियायत रखते हुए अगर वाकई कहीं इस तरह है कि जहाँ बेपर्दगी नहीं होती तो एक जुदा बात है, सही। लेकिन मंडी के और इस तरह के हालात आपके सामने ही हैं, तो इसमें बिल्कुल बचना चाहिए। ये देखिए, ये इसको नाक के अंदर ये रिंग पहनाया गया है, तो क्या अब इसमें ऐब पैदा हो गया या क्या होगा, ये इसकी कुर्बानी हो जाएगी? ये क्यों पहनाया गया इसका ये पूछें? पहनाया क्यों गया है, जरा भाई यहाँ पर बुलाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप होते हैं यहाँ पर? जी हाँ। कैसे हैं आप, ठीक हैं? क्या नाम है आपका? नवाज अली। नवाज अली भाई, ये इसके नाक के अंदर ये क्यों पहनाया गया है? भाई ये खूबसूरती के लिए सिर्फ खूबसूरती के लिए पहनाया गया जी है? अल्लाह अकबर। आज तक मुफ्सब लेडीज के नाक में तो हमने जो है वो नथ देखी थी, ये तो बेल के नाक के अंदर नथ डाल दी गई है। इसका क्या हुक्म है? क्या ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि खूबसूरती के लिए पहनाई गई है? देखिए इसके लिए अलग से तो सुराख नहीं किया गया। जो असल जो नट का सुराख होता है जिसमें रस्सी, बाजों के रस्सी जो है वो डली हुई होती है, इन्होंने इसकी रस्सी जो है ना ऊपर मोरे की सूरत में बांधी हुई है और इसके जो है वो नाक के में जो है वो डाला हुआ है। तो अगर अलग से इसके लिए कोई सुराख करके उसे तकलीफ नहीं पहुंचाई गई तो ठीक है। जेवरात या ये इस तरह की जो सजावट का एहतमाम जानवरों के साथ करते हैं तो इसमें कोई हरज जो है वो नहीं है। और ये अगरचे जो है वो बैल है तो इसका हुक्म मर्दों के जेवरात वाला भी नहीं। अच्छा, इसका कोई हुक्म नहीं है। ये पहनाते वक्त इसको तकलीफ नहीं हुई थी? इसको दर्द तो हुआ होगा यकीनन। जी नहीं, पहले दिन लगाते हैं उस वजह से होता है, उसके बाद में नहीं होता है। उसके बाद दर्द नहीं होता? जी हाँ। अच्छा, तो अब क्या इसको चलाने के लिए बसा होगा देखा है कि नाक में रस्सी डाली जाती है, तो क्या ये इस काम में भी आ जाता है? मोरी पे चलता है। अच्छा, मोरी पे चलता ही है। अच्छा, मारता तो नहीं है? नहीं नहीं। पक्की बात है। मुफ्ती साहब, ये इसका कद देखा आपने? माशाल्लाह, ये भी माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त कद है। और आपके पास जो जानवर है मुफ्ती साहब, ये तो बिल्कुल आपकी टांगों तक आ रहा है। जी माशाल्लाह। ये भी उन खूबसूरत जानवरों में से है जी कि जो छोटे बैल कहलाते हैं, और ये भी बहुत से लोग इसको भी पसंद करते हैं, ले जाते हैं। और ये आम नॉर्मल वो नहीं है, बल्कि रेट के एतबार से भी महंगे होंगे। सही। तो बहरहाल अगर 2 साल उम्र पूरी है और तो ये बिल्कुल कुर्बानी के काबिल, इसमें कोई किसी तरह कोई ऐब वगैरह नहीं है और जो शराइत हैं वो पाए जाते हैं तो फिर इसकी कुर्बानी ये भी जायज़ है। 7 ही हिस्से इसमें होंगे, 7 हिस्से। सही। मतलब ऐसा नहीं कि छोटे होने की वजह से इसके हिस्से कम करेंगे। सही, माशाल्लाह। चलें जी, चलें मुफ्ती साहब, ज़रा आगे देखते हैं। माशाल्लाह यहाँ तो भरपूर टेंट्स लगे हुए हैं, भरपूर जानवर मौजूद हैं। यहाँ भी बहुत खूबसूरत जानवर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम भाई। असलम भाई कहाँ से लेकर आए जानवर? साहिवाल से भाई। साहिवाल से। कितने जानवर लेकर आए? अभी 100 जानवर लेके आए भाई। अभी 100 लेकर आए हैं, तो आगे भी लेकर आने का इरादा है यूं? हाँ, ऐसे हम तो 30-35 साल से आ रहे हैं भाई। अच्छा, हाँ जी, तो इतने जानवर बिक जाते हैं? बिक जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़े महंगे जानवर हैं माशाल्लाह, बड़े कीमती कोई जानवर ऐसा हैं। मसला नहीं, अभी तो महंगे उधर खड़े हैं, काफी महंगे अभी आपने वहाँ साहिवाल में रखे हुए हैं? रखे हैं। अभी 2-3 अभी लाएंगे, छुपा के रखे हुए हैं, पहले हाँ, ये बिक जाएंगे फिर वो लेकर आएंगे? नहीं, वो लाने नहीं, इधर उधर ही बिक जाते हैं। अच्छा, वैसे जानवर साहिवाल के बड़े मशहूर हैं। बहुत शुरू है, बहुत है। पंजाब क्या वजह है साहिवाल के जानवर के मशहूर होने की? कुदरती गल, अल्लाह ताला ने उसको नायत है। पंजाब को बहुत बड़ा जानवर पैदा होता क्या है। स्पेशलिटी होती है जो कराची के जानवर में नहीं होती और साहिवाल के जानवर में होती है? नस्ल वो नस्ल है, हर इलाके की नस्ल है। दन्नी नस्ल है, साहिवाल नस्ल है, चोलिस्तान है, लेकिन जो साहिवाल नस्ल है वो साहिवाल ही है। जरा दिखाएं कि साहिवाल के जानवर में क्या खूबसूरती है। चलें आइए नाज़रीन, जरा आपको भी दिखाते हैं कि साहिवाल का जो जानवर होता है ये पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कि साहिवाल का जानवर ये अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होता है माशाल्लाह। ये देखें, ये पिंक कहलाता है। इसमें ना जो काल के अंदर पिंक भी आ रहा है ना, वाह वाह वाह, व्हाइट और पिंक क्या कहला, ये चोलिस्तान है। अच्छा, ये चोलिस्तान का है। हल्का सा क्रॉस भी है इसमें। सही। और चोलिस्तान है, ये भी चोलिस्तान का है। ये बछड़ी साहिवाल है। ये बछड़ी साहिवाल की है। ये जो गोल मटोल है और ये इसकी खूबसूरती है। बिल्कुल खूबसूरती है इसकी। देखो इसकी नोज वगैरह, आंखें, ऐसे जो कचला होता है, घुटने इसके काले हैं, ये साहिवाल की निशानी है। अच्छा, कोई बछड़ा दिखाए ना हमें, कोई बछड़ा दिखाएं साहिवाल का। ये साहिवाल का है। चलें एक और जरा साहिवाल का देखते हैं। रब की कुदरत है मुफ्ती साहब। अच्छा, इसको कोई स्पेशल खुराक देते हैं हमारे? अगर खुराक तो स्पेशल देते फिर ही बनते हैं भाई। क्या अभी खुराक? बच्चा ये अभी तो 2 साल का बच्चा। ये इतना बड़ा हो गया, इसको आप बच्चा कहने अभी भी? हाँ, नहीं बड़ा नहीं हुआ जी। ये बड़ा नहीं हुआ? नहीं बड़ा। अभी कितना और बड़ा इसको अभी करेंगे आप? 2 साल को पालना चाहिए था। 2 साल और पालना चाहिए था। हाँ, फिर बड़ा बढ़ता है। अच्छा, कितना बड़ा हो जाता है वो फिर? फिर तो ये 40 मन का हो जाएगा माशाल्लाह। अभी कितने मन का होगा ये? अभी तो ये 10 मन का है। अच्छा, बसा औकात ये सुना है हमने कि जानवरों को हाथों से खाना खिलाते हैं। हाँ जी, ऐसा होता है? हाँ, होता है। वाकई ऐसा होता हाँ, है? ये शिब्बी के लोग, इलाके के लोग है ना, ये ऐसे खिलाते हैं। हमारे इलाके में बकरों को ऐसे खिलाते हैं। इससे क्या फायदा होता है? बस इधर भी है,
कराची में भी चांदे ऐसे कराने हैं, उनके बकरे भी पलते हैं, वो भी हाथों से कराते हैं अच्छा जी। तो उनको उठना बैठना इतना वजन हो जाता है, उठाते हैं खुद पकड़ के। अल्लाह, उसका इतना वजन हो जाता है कि हाँ जी, उसका उनको उठाना पड़ता है वो सब ऐसा जानवर बनाना जी। कि अब उसका चलना फिरना, उसका यूं कहा जाए कि अपनी टांगों पर खड़ा रहना दुश्वार हो जाए, मुश्किल हो जाए। क्या कहेंगे ऐसा जानवर बनाने वालों को? देखिए, सेहतमंद होना ये अपनी जगह है, मोटा जानवर होना अपनी जगह है, लेकिन इस तरह का ना हो जाए कि वो बिल्कुल ही दूसरे का मोहताज ही हो जाए। तो अपनी टांगों पे उठे, अपनी टांगों पे चले, ये सब कुछ यानी इस गुंजाइश के अंदर अंदर। यहाँ भी आप देखें, आप ये 10 मन का और ये कह रही है अभी बच्चा है, और इनके पास बड़ा भी होगा, ये सामने ब्लैक वाला है, तो ये तो अच्छा, ये इसको बच्चा कह रहे हैं, तो वो जो बच्चा है ऑलरेडी जो छोटा नजर आ रहा है, काले वाला, हाँ काले वाला, हाँ, उसकी उम्र ज्यादा है इससे। उसकी उम्र कितनी है? वो उम्र है 3 साल उसकी। लेकिन आप बच्चा तो इसको कह रहे हैं। हाँ, ये 2 साल का है। दो दांत जो होता है बच्चे में शुमार होता है। 2 दांत का बच्चे में शुमार होता हाँ, है। बच्चों और में 2 शुमार दांत कब निकलते हैं? 2 साल बाद। जो ब्राह्मण नस्ल है वो 20 महीने बाद, ये 30 महीने बाद, 30 महीने बाद निकलती है। हाँ जी। अब इसके पक्के 2 दांत निकल चुके हैं। हाँ, पक्के 2 दांत। पक्के 2। कोई ऐसा कच्चा है खीरा जिसके अभी नहीं, निकले हों, अभी नहीं, निकलने वाले हों? नहीं है ऐसा कोई नहीं है। ठीक ठीक, चलें आए माशाल्लाह, और इसकी जरा देखते हैं खूबसूरती। सुभान अल्लाह, बच्चे सुभान भी अल्लाह। खेल रहे हैं आराम से। अरे वाह, अरे वाह, माशाल्लाह। कौन सा जानवर पसंद आ रहा है आपको? इस वाले की सींग में सुराख है। इस वाले के सींग में सुराख है? मसला पूछ लें मुफ्ती साहब से। चलें जी मुफ्ती साहब, इसके सींग में सुराख है, बच्चे सींग में सुराख ढूंढ कर आए। अल्लाह अकबर, वाकई मुफ्ती साहब इसके सींग में सुराख है, जरा देखिएगा ये क्या फरमाएंगे ऐसे जानवर की कुर्बानी के हवाले से? नहीं, ये अभी सींग कटे थे उस वजह से ये जख्म हुआ है या वैसे एक्स्ट्रा कोई जख्म है? नहीं, उस वजह से। अच्छा, अभी काटे हैं ये सींग? ना, नहीं, अभी 2-4 महीने पहले काटे थे। ऊपर जड़ से? हाँ, जड़ से। अंदर जड़ से तो नहीं निकाली इसकी? नहीं, जड़ नहीं निकालते, ऊपर से काटते हैं। सींग इसके असल जड़ में सलामत है, तो ये नॉर्मल जो जख्म होता है ना, ये ऐसे ही कोई जख्म है जो कि सींग का नहीं है, सींग का नहीं है। हाँ, ऊपर ही है, नीचे नहीं है। यानी बुनियाद ये है कि अगर सींग जड़ से उखाड़ दिए तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, जबकि जख्म भरा भी ना हो। और अगर सींग सिर्फ जो है वो ऊपर से जो है वो काटे हैं, अच्छा, अब उस काटने में हो सकता है कि ग्राइंडर जो है वो इसको लग गया हो, जिसकी वजह से जो है वो जख्म जो है वो जो मुफ्ती साहब ने बताया था कि ड्रिल चलाते हैं और यूं करते हैं, जड़ से निकालते हैं, ये जड़ से निकालते हैं, वो ये इसका मौजूद है, इसके मौजूद है। नहीं नजर आएगा, नहीं वो नहीं, ये है ना, ये सींग तो है ना, इसका जड़ जैसे मौजूद है। अच्छा, ये जानवर जो डर रहे हैं ना, ये भी इस वजह से डर, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रैक्टिस हो चुकी है सींग काटने के लिए, इसलिए सर पे हाथ नहीं रखने देते ये बहुत बाज जो है ना। और जो जड़ से जिसके निकले हुए हैं उसके तो आप सींग सर पे हाथ नहीं रख सकते, करीब नहीं जा सकते। ज्यादातर ना हजरत साहब बचपन में करते हैं, जब बच्चा हो जाए ना 10 दिन 15 दिन का, वो एक सिविल नाइट्रेट होती है तेजाब टाइप, वो लगा देते हैं, वो तो जड़ खत्म हो जाती है, जड़ खत्म कर देते हैं। हाँ जी, बचपन से 10-15 दिन का बच्चा। बहरहाल ये हम जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने इसको डिस्कस किया यूसुफ भाई, इस तरह के अमल करना जिसकी वजह से जानवरों को ये तकलीफ पहुंच रही है, भले जख्म ठीक हो गया, कुर्बानी जायज़ है, लेकिन ये व्यापारियों को ये अमल नहीं करना इससे चाहिए। बचना चाहिए। जानवर को खसी किया जाता है और इसको जो है वो उसके अंदर यूं कहा जाए कि ये क्या इसको एब में काउंट होगा या नहीं, एब में शुमार नहीं होगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस जानवरों को पसंद फरमाया वो, और जो खुद भी ज़बह किए हैं, वो खस्सी थे, मेंढे। अच्छा, मेंढे भी थे, खस्सी भी थे। खस्सी करना ये जानवर में ऐब नहीं है, ये शरीयत को मकसूद है, यानी ये वो चीज़ है। खस्सी में कोई किसी तरह का मामला नहीं, बल्कि गैर खस्सी से खस्सी जानवर ये ज़्यादा फजीलत वाला है, ज्यादा अफजल, यानी अफजल भी है, ये ज़्यादा है, और इसका गोश्त बहुत नफीस होता है, इसका गोश्त बहुत नफीस होता है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। हमें आप इजाज़त देंगे, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आपने लेकिन कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगला प्रोग्राम बड़ा ही खूबसूरत है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाएंगे, आपने ज़रूर शिरकत करनी है। मदनी मुज़ाकरा देखते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद के रंग के संग, ईद के बिखरे फज़ाओं में खुशियों के रंग, रब की अताएं हैं मोमिन के संग। ईद के रंग मदनी चैनल के संग।